بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقہ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور حکم آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس ولاگ میں میں نے کافی چیزیں آپ کو دکھانی ہیں, غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے چہرے ہم نے بے نقاب کرنے ہیں, وہ چہرے جو اس وقت تصفے بہا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ذرا چہرے میں آپ کو دکھاؤں گا, ان کی گفتگو سنیے گا کیونکہ اس وقت معاملہ کیا ہے. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا کیونکہ اس میں نے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ اگر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن کی تاریخ دی تو پھر ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے. اور 9 مئی پہلے کیوں ہوا تھا؟ پہلے ہوا تھا اس لیے کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی اور 14 مئی کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کا حکم دے دیا تھا اور پھر 15 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے باقاعدہ طور پہ جتھے گئے تھے اور ججز کو دھمکایا گیا تھا. اس سے پہلے بھی ججز کو دھمکایا گیا, دھمکیاں دی گئی, برائب آفر کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ خبردار اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ دینے کی کوشش کی اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. پارلیمان کے اندر بھی گالم گلوچ کی گئی, پارلیمان کے باہر بھی گالم گلوچ کی گئی اور اس میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ANP, مولانا فضل الرحمان صاحب, کسی نے کوئی رعایت نہیں کی اور سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس میں تمام کے تمام مرکزی قائدین جو ہیں وہ آئے میدان میں. ذرا سنیے کہ اس وقت جب سپریم کورٹ یہ اس طرف بڑھ رہی تھی اور ججمنٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی 14 مئی کو الیکشن کروانے کے لیے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری ہے, تو کیا کہہ رہے تھے رہنما. پہلے ذرا یہ سن لیں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو سنوانی ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے. یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا, جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں. یہ فیصلہ نہیں ہے, اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا. ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے, ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ کو اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس سب کچھ بن جائے, حکومت بھی بن جائے. 3 ججز ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. کمپرومائز ورڈکٹس, اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں. سو موٹو جو ہے نا جہاں اسپیکر, دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. سسو موٹو, ساس کے کہنے پر 100 موٹو لینے والے لوگ لا کی مانے مگر سر مدر ان لا کی نہ مانے. آپ اپنی کرسی کو کوئی داماد کے لیے استعمال کر رہا ہے, کوئی ساس کے لیے استعمال کر رہا ہے, کوئی اور مامے چاچے کے لیے استعمال کر رہا ہے. کرسی آپ کو آئین نے دی ہوئی ہے. یہ جو offensive order ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کو پریویلیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. ہمارے اختیارات ہیں, ہمارے پاس سول پاورز ہیں کہ ہم ججوں کو یہاں پہ بلائیں. بتوڑا نہیں چلے گا. پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ مجھ نہیں بلا سکتے. عدلیہ سے حساب لے, اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہو, پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. بقا کی جنگ جو ہے نا وہ تو پھر ہر کوئی لڑتا ہے, تو جو بھی ہتھیار اس وقت اویلیبل ہوگا وہ اس کو استعمال کیا جائے گا. آپ آئین بناتے جائیں, ری رائٹ کرتے جائیں, آپ نئے قوانین بناتے جائیں, ختم کرتے جائیں, اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا. کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کرنی, آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف, تو پھر کسی کا گھر نہیں بچے, کسی کی فیملی نہیں بچے گی. چیف جسٹس یہ آپ نے آخری شاٹ سنا جی کہ کسی کا گھر نہیں بچے گا, کسی جج کی فیملی نہیں بچے گی. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں جو کل کہہ رہی تھیں کہ اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ دی تو اس کا مطلب ہے 9 مئی ایک اور تیار کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیجئے. اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سنواؤں گا کہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن سے بھاگے ہیں نہ سے بھاگ رہے ہیں. ہاں, اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دیں. جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے. میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈرو گے آپ مرو گے. اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں, وہ خوف زدہ ہے, وہ بائی الیکشن سے بھاگتے ہیں, وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں, اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। तो उस वक्त ये सब के सब लोग धमकियां दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उस वक्त स्टैब्लिशमेंट ने भी किसी किस्म की कोई इनसे हटे नहीं है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, एक आईनी इदारे को, वहां पे एक आइन के तहत पिटीशन चल रही है। लेकिन उस वक्त स्टैब्लिशमेंट ने भी खामोशी का इजहार किया, क्योंकि वो भी इलेक्शन नहीं चाहती थी और ना ही ये 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन चाहता था, और उसमें खुलेआम धमकियां दी जा रही थी। अब जरा जब वो तो अपनी मुद्दत पूरी करके चले गए, और इस वक्त भी सदर ममलिकत इलेक्शन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनको भी धमकाया जा रहा है। लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ और देखिए कि मैं सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को सुनवाना चाहता हूं कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए इसहाक डार साहब वजीर खजाना वो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये सारी की सारी मुआशत की जो तबाही है ये तो है ही मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, ये तो है ही फौजी क़यादत की वजह से। और उन्होंने कहा मैं तो इससे बहुत अच्छा कर सकता था। और पहला शॉट सुनिए कि जिसमें वो मुकम्मल तौर पे पूरी की पूरी फौजी क़यादत पे डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर नदीम मलिक साहब हमारे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, उन्होंने फिर अपनी जान की अमान भी महफूज रखनी थी, फिर उन्होंने एक वजाहत करवा ली। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो इसहाक डार साहब गुफ्तगू कर रहे हैं ये पहले गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसहाक डार साहब 28 सितंबर को वजीर खजाना बने थे, 28 सितंबर 2022 को, यानी पूरे का पूरा सितंबर गुजर गया था। अक्टूबर और नवंबर तो 2 महीने सिर्फ ये जनरल बाजवा साहब के जमाने में वजीर खजाना रहे, और 9 महीने पूरे ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब के दौर में ये वजीर खजाना रहे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं अब जरा वो सुन लिए, ताकि मैं चाहता हूं कि DGI-SPR जरूर सुन लें, और हो सके तो आर्मी चीफ को भी सुनवा दें ये गुफ्तगू कि इस वक्त वो क्या कह रहे हैं। से संभाल सकता था। मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, रुकावट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ कि क्लियर मैसेजेस थे कि फाइनेंस मिनिस्टर को कहें कि मार्केट को चलने दें। और आपने देखा कि मैं अक्टूबर के मिडल में जाकर कहा आए आप पाकिस्तान माइंस रिव्यू करें, वी आर रेडी। मैं मुकम्मल करके गया था काम, 3 महीने क्यों लगे, क्यों 244 से 70 पे गया तो वो 31 जनवरी को। ये आप लोगों को एजुकेट करें। ये शर्तें क्यों आयद की गई कि जो काबुल का रेट है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये शर्तें क्यों आयद की उन्होंने? ये मार्केट वो तो है ही ग्रे रेट है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्तें क्यों डाली गई? ये शर्तें लिख के तो नहीं होती ना जी, ये शर्तें तो आपको डिक्टेट करते हैं ना। आपने देखे, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल गोल कुछ और था, वो ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान श्रीलंका बने। आई बीन प्रीवी टू दोज मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ जो दुनिया के कॉरिडोर्स में डिस्कशन होती थी, वो आपकी चंद चीजें उनको आज तक हजम नहीं हुई और अभी भी शायद ना हो। तो उसके लिए इजी यानी आसान तरीन तरीका है, खुदा न खासा पाकिस्तान वो अगर उस सिचुएशन में चला जाता फिर वो आपके साथ वो करते। मुझे ये बताएं, कोई वजह नहीं थी कि 9th रिव्यू जो है 9 फरवरी का डिले होता। चलो उन 3 महीने लगा दिए, अपनी मर्जी डिक्लाइन स्लाइड करवा दिया थ्रू देयर ओन सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल बैंक को हमने मादर पर आजाद कर दिया इमरान खान साहब के जमाने में। आपने एक फिगर बोली थी, ये डार साहब इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं कि ये तो चाहते थे डिफॉल्ट हो जाए, यानी कौन चाहता था? मिलिट्री लीडरशिप। ये उनकी बात कर रहे हैं कि ये तो चाहते थे डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बने, और ये तो हमें डिक्टेट करते थे। और ये अगर कोई गुफ्तगू ये 9 मई से बड़ा काम किया है, ये 9 मई से बड़ी बात है। इसे कहते हैं कौमी मफादात, इसे कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसे कहते हैं कौमी सलामती को दाव पे लगाना। तो इतना बड़ा इल्जाम जो है ये लगा रहे हैं किस पे? फौजी क़यादत पे। और फौजी क़यादत भी ये फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं, ये पुरानी बात नहीं कर रहे। और उसके बाद जब नदीम मलिक साहब ज़ाहिर समझदार आदमी है और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर गए हैं, और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फिर आप मौजूदा फौजी क़यादत के बारे में क्या कहते हैं। तो ये भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि फिर नदीम मलिक साहब आपको पता है कि बहुत माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, मंझे हुए हैं, उनको पता था कि ये तो किसी और तरफ ही चले गए हैं और ये पूरे का पूरा प्रोग्राम ही न बंद करवा दें। सुनिए जी जरा। मैं क्या वजह हुई जिससे इख्तिलाफ हुआ? फिस्कल डिसिप्लिन। आप चाहते थे चादर देख के पैर चलाएं। हाँ बिल्कुल, तो उसके ऊपर आपका इख्तिलाफ होगा। बिल्कुल। आज मैं साबित कर सकता हूँ कि अगर मेरी बात मानी होती, अगर हम कमिट ना करते, अगर हम खर्च ना करते अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज, आज हम इधर ना खड़े होते। जनरल आसिफ और जनरल नदीम जो मौजूदा 2 हैं जी, एक आर्मी चीफ और एक DGISI, इनको कैसे आप रेट करते हैं? ये अंडरस्टैंड करते हैं? मच डिफरेंट। इनकी सोच बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी के साथ। एंड आई हैव डिस्कस दिस कि ये हम क्यों इधर पहुंचे, और हम वो मैं समझता हूं कि मैं तफसील में नहीं जा सकता।
आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान गॉट द राइट लीडरशिप नाउ। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्योंकि नदीम मलिक साहब ने पूछ लिया कि जनाब मौजूदा क़यादत के बारे में, तो ये तो सारे का सारा टेन्योर ही आर्मी चीफ बाजवा जनरल आसिम मुनीर और सिर्फ 2 महीने इन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ काम किया और बाकी 9 महीने तो ये आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ काम करते हैं और जनरल नदीम तो पहले भी थे। तो ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जनाब मुझे डिक्टेट किया जाता था और इस हालत में पहुंचाने वाले ये हैं और इन पे सारे का सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हालात व वाक़यात ये खास तौर पे प्रेशर डालने के लिए तशरीफ लाए हैं वापस, और चूंकि नवाज शरीफ साहब से मिलके गए हैं, मुलाकात करके गए हैं, इनको खतरा है कि इलेक्शन जो है, क्योंकि प्लान जो था कि इलेक्शन नहीं होने और इमरान खान साहब को जेल में डालना है, इमरान खान साहब को तवील अरसे तक अंदर रखना है, इसीलिए उनके खिलाफ गवाहियां तलाश की जा रही हैं, वो गवाहियां मिल नहीं रही। और वो भी एक आपको शॉर्ट सुनवा देता हूँ, मेरे पास है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ जो जेल में लोग मौजूद हैं, जेल में जो खवातीन हैं, जेल में बाकी कैदी हैं, सियासी कैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आपको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ आप ये जाके कह दें, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें कि आपको 9 मई पे भेजा था इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब के कहने पे आपने ये सारा कुछ किया। तो वो खवातीन व हजरात अलल ऐलान कह रहे हैं कि जब हमने ये काम किया ही नहीं, नंबर 1 ना हम किसी जलाओ घिराव में मुलव्वस, ना हम किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस, ना हम इमरान खान ने कहा, हम आए, पुरअमन एहतजाज किया और चले गए और उसके बाद आप लोगों ने हमें अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी, ये एक पूरे का पूरा नक्शा आपको दिखा दिया। लेकिन दूसरी जानिब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब को जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे और उनके बच्चों से अभी तक टेलीफोन पे बात नहीं करवाई गई। कल भी गई, अलीमा खान भी अपने भाई के लिए कहीं अदालत में मौजूद थी, उन्होंने भी बताया कि हम तो अदालत आए हैं कि ये अपने इमरान खान साहब को अपने बच्चों से बात करने का हुक्म भी आ चुका है, लेकिन जेल सुप्रीडेंट, जेल इंतजामिया अमल नहीं कर रहे। तो ये तो उस तरफ जा रहे हैं और वो अभी भी अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। और इमरान खान साहब भी जेल में बैठे हैं, उनको भी पता है कि ना साइफर से कुछ निकलेगा, ना 9 मई से कुछ निकलेगा, जैसे कि तोशाखाना से भी कुछ नहीं निकला, इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं जी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। मैंने कहा कि आपके सामने एक नक्शा पेश कर दूं कि इलेक्शन रुकवाने के लिए ये क्या क्या जतन कर रहे थे और अब भी क्या क्या जतन कर रहे हैं। और ये हमारे, मेरा ख्याल है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, जनरल नदीम अंजुम साहब को, इन सारों को जरा रिविजिट कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।